So starting with the calculations, numerical calculations just now, which we had begun. Okay, children, am I audible to you all now? Yes, ma'am. Okay, starting with the calculations which just now we had begun on the sire indexing. As you all can see, the question was 3 buffalo bulls were each mated for 4 randomly chosen female from herd in the same year. First lactation milk yield of dam and their daughter is given below, and we had to calculate the sire index of the 3 buffalo bulls on the basis of all the 3 possible values. धीरे करिए उमा, उमा थोड़ा सा इस रूम को सटा दीजिए, थोड़ा सा धीरे इस रूम को सटा दीजिए. हाँ, going by the first method, simple daughter average index. मैम हाँ, मैम आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है. okay. Now is it visible? Now it will be visible. Wait for 2 minutes. Is it visible to you all? Yes, ma'am. So as I have shown to you all, 3 dams, sires A, B and C, the 3 bulls A, B and C were mated to the 4 dams respectively, and the milk yield of the 4 dams for bull A with these daughters have been given. Milk yield of the daughters thus produced have been given for A, B and C as well. Now coming to the first one, do I need the dams average for the first method, simple daughter average index? No, ma'am. No, ma'am. Exactly no. Easiest of the two, it just depends upon the value as I showed to you all in this slide. It depends just upon the daughter's average D bar. So it is equal to 2105 plus 2140 plus 2125 upon 2100, which is equal to 2117.5. Am I correct? सही है? कोई क्रॉस चेक किए हैं? Yes, ma'am. Okay, then coming to sire ID B. Simple daughter average index for sire ID B. It is equal to 2110. You see here in the third column, milk yield of the daughters are have been given. So you have to add them all to find the average, plus 2120 plus 2105 plus 2095 upon 4, which is equal to, calculate it and tell me who calculates it first. Let's see. 2110 plus 2120 plus 2105 plus 2095 gives you 8430 divided by 4, which gives you what? 2107. 2107.5. 5. Sire ID C. This is the third column, sire ID C, third column of this table of this side, which gives you the daughter's average for sire ID C. 2090 plus 2080 plus 2080 plus 2000 upon 4. मैम आप डैम एवरेज लिखिए. Ma'am, it's damn. What happened? I'm writing the dam's average instead of the Value From second one. 95. Yes. 1 0 and 2 1 0 5, which is equal to, calculate it and tell me. 2097.5. 2090 plus 2097, ma'am.
Yeah, I know. So you have already calculated it, right? This is the final Yes, ma'am. value you are telling me. Let's check. Yes. 8390 divided by 4. It is 2097.5. Very good. Now by second method, equiparent index method. By equiparent index method you have, so which is the best SAR according to this method? A, B, C. Okay. By equiparent index method, when you go for calculating it by equiparent index method, you know I is given by 2 into daughter's average minus, is it clear to all of you? So for sire IDA, it will be equal to, we already have the value of daughter's average, right? So we can put it straight away 2 into 2117.5 minus dam's average we have to find. What will be the value of dam's average? First one का 2105 plus 21 डैम की वैल्यू चाहिए, तो सायर आईडी ए का डैम क्या है, ये है, तो 2105 plus 2130 plus 2115 plus 2110 upon 4. 2105 plus 2130 plus 2115 plus 2110 8460 divided by 4. 2115 which is equal to, calculate it, 2 into 2117.5 minus 2115, it is equal to 2120. Similarly, for sire B we have 2 into daughter's average. What is the daughter's average? You know, it is 2107.5 minus dam's average. Dam's average, we go above and we find that this is the column for the value of dam, and we will find the dam's average over here, 2090 plus 2100 plus 2094, 6284. 6284 divided by 3, it gives you 2094.7. 666 recurring, 6 recurring, so it gives you 2094.7. All of you please calculate alongside, so that if at all there is any mistake, it can be rectified. And I also feel that it is not unidirectional but an interactive. फिर बेटा इंटरेस्ट आप लोगों का भी बढ़ेगा, थोड़ा मुझे भी इंटरेस्ट आएगा. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर कैलकुलेट कीजिए, मोबाइल पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना या फिर ऐसे भी कैलकुलेट, इट इज नॉट गोइंग टू बी टफ, इट्स जस्ट दैट इट विल हेल्प यू ऑल स्टे इन द क्लास मेंटली. 0.5 4215 minus 2094.7, 2120.3. Similarly, for sire C, you have, it is equal to 2 into daughter's average, which is already calculated over here, 2097.5 minus dam's average. For that, we again look into the table, the values of the dam, and they are 2060, 2080, 2080 and 2000. 2060, 2080 and 2000. इसमें से 2 20 दे दिए तो उसको 60 हो गया उधर, तो यहाँ तक तो 60 ही हो रहा है, इसको 20 दे दिए तो 20 हो गया इधर, तो
6 त्रिक 8, 6 दूना 12, चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। डेसिमल में कुछ वैल्यू आनी चाहिए। 2060 प्लस 2080 प्लस 2080 प्लस 8220 divided by 4. So it is 2055. Which is equal to 2 into 2097.5 4195 minus 2055, which is equal to 2140. So if you rank the SIR on the basis of equiparent average index, this is CB. first, this is second, and this is third. Is it clear to you? Clear है सबको? यस मैम। Okay, Yes, beta. Coming to the second question. The second numerical is given below are the month and years of calving and first lactation milk yield record of 15 daughters of 3 dairy sires in a progeny testing program. Calculate the herd mate average of the 3 bulls. This is very important because in this numerical I will be teaching to you all about herd mate average, how to what is the concept of herd mate average, how to calculate it. So just starting with it. Just start, just a minute. So we will be dealing with the questions now. So we will be dealing with the next question now, taking this question over there. And then I put it over here. I request to please close the door of this room. Close the door of this room, please. So, understood. Somebody came to inquire me about something. I had to say something. So this all will keep on going when you are teaching in the when you are teaching at your residence, because few things are indispensable. वो नहीं छूट सकता है ना. Anyways, coming back to the question, doesn't matter actually. These are the small things which will go on, trivial ones. तो इसमें से आपको हर्ड मेट निकालना है. कैन यू ऑल टेल मी, आप लोगों को याद है कि हर्ड मेट में हम लोग क्या बोले थे, कितने मंथ के बीच के एक किसी एक सायर के एक प्रोजेनी को कितने मंथ के बीच के प्रोजेनी से कंपेयर करते हैं दूसरे सायर के प्रोजेनी से? 3 months. 3 months. हाँ, 3 months. plus minus 2 months. Plus minus 2 months. You see here. Okay. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो कि कमिंग टू, ध्यान से देखिए सब लोग, हर एक प्रोजेनी का बुल आईडी 1 का डॉटर आईडी 1 का हर्डमेट निकलेगा फ्रॉम दीज 2 बुल्स. बुल आईडी 2 का डॉटर, बुल आईडी 1 का डॉटर आईडी 2 का हर्डमेट निकलेगा फ्रॉम दीज 2 बुल्स. बुल आईडी 3, 4, 5 सबका निकलेगा फ्रॉम दीज 2 बुल्स. फिर बुल आईडी 2 के प्रोजेनी आईडी 6 का हर्डमेट निकलेगा फ्रॉम दीज 2 बुल्स 1 and 3. उसी तरह 6 से लेकर 10th आईडी वाले प्रोजेनी का हर्डमेट किससे निकलेगा? डॉटर आईडी 1 से 5 तक और डॉटर आईडी 11 से 15 तक. वी विल नॉट इंक्लूड इट. सिमिलरली बुल आईडी 3 के पांचों डॉटर के हर्डमेट को जब निकालेंगे, प्लस माइनस 2 मंथ्स में जो प्रोजेनी बॉर्न हुए हैं वो ढूंढेंगे हम लोग इसमें और इसमें.
means in the first and the second one we will not include this. Am I clear to all of you? Yes, ma'am. Okay, very good. मीन्स फर्स्ट पिछला 2 महीना भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जन्म हुआ है, तो इसका अगर अप्रैल में जन्म हुआ है तो मतलब मार्च और अप्रैल 4 में जन्म हुआ है, मतलब हम लोग इसमें 2 और 3 तक कंसिडर करेंगे या फिर 5 और 6 तक कंसिडर करेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 4 - 2 क्या होता है? 2। तो ये 4th मंथ में इस प्रोजेनी का जन्म है। इट हैज टेकन बर्थ इन 4th मंथ, सो वी विल कंसिडर ऑल दोस प्रोजेनी फ्रॉम अदर बुल्स हु आर बोर्न इन 2nd and 3rd मंथ या फिर 4th मंथ भी, माने उतना तक, 2nd तक, और आगे के कितना तक? 4 में 2 जोड़ दीजिए 6, 5वें और 6ठे महीना तक। 4th तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड है। माने कहां से कहां तक? 2 से लेकर के 6 तक के जितने प्रोजेनी होंगे वो इस 4 वाले के हर्डमेट होंगे। उसी तरह 7 में 2 घटाइए +-2, 2 घटाइए तो 5 होता है और 2 जोड़िए तो 9 होता है। मतलब 5वें से 9वें महीने के बीच में जितना प्रोजेनी जन्मा है टू अदर बुल विल बी द हर्डमेट ऑफ दिस प्रोजेनी नंबर 2 ऑफ फर्स्ट बुल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू अप टिल हियर? यस मैम। ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन। इन टोटल मैम 4 मंथ का गैप ले रहे हैं ना? क्या बेटा? मैम 4 मंथ का स्पैन ले रहे हैं इन टोटल। 4 मंथ का स्पैन ले रहे हैं इन टोटल, ऑलमोस्ट कह सकते हैं इंक्लूडिंग दैट सेम मंथ। तो 4 मंथ का स्पैन तो नहीं हुआ, लगभग तो वो 5 महीना हो गया। वो महीना 5 मंथ, पिछला 2 महीना, अगला 2 महीना, +-2 मंथ, है ना? दैट इज इम्पोर्टेंट यू ऑल टू नो। अगर ऐसे याद रखना है तो 5 महीने का, बस 5 मंथ स्पैन, ये वर्ड कैन बी अ मिसनोमर। समटाइम्स यू माइट फॉरगेट कि यार पिछला 2 महीना कितना कितना लेना था। इफ यू आर स्मार्ट एनफ इट्स ओके। सो इट्स गुड टू रिमेंबर इट दिस वे, +-2, and obviously that month will be included in which it is born. Am I clear to all of you now? Yes ma'am. Okay, सबसे पहले हम लोग साइरर आईडी 1 के लिए, साइर आईडी 1 के लिए पहले एक डॉटर आईडी बनाएंगे, फिर हर्डमेट एवरेज के लिए बनाएंगे। टोटल कितने हमारे पास डॉटर्स हैं? हमारे पास डॉटर्स 1 2 3 4 5। कौन सा है? 1। ये 1 इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में उसी तरह से लिखा हुआ है रोमन में। सो टू मेक इट ऑलवेज क्लियर, डॉटर आईडी एंड देन हर्डमेट एवरेज, average of what? Of daughter. And then we will go for calculating the average of all these values to find the herdmate average of the sire. Insert one more row below because total of 5 daughters are present. 1 2 3 4 and 5. Up till here, I'm just saving it so that I can send to you all afterwards. It's been sent in the 3rd unit drive of the drive which I don't want. Document में 3rd unit इसमें save. So herdmate average of daughters अब पहले वाले का निकालेंगे. We will go for the calculation process to fill the required things. पहले वाले का you all see अप्रैल में बॉर्न है। हर्डमेट एवरेज कौन कौन है इसमें ध्यान से देखिए। 2300 वाला, इसको मैंने अंडरलाइन करके ऑलरेडी रखा हुआ है। पहला का देखना है, पहले बुल को छोड़ देंगे क्योंकि पहले बुल के बाकी प्रोजेनी को हम लोग कंसिडर हर्डमेट में नहीं कर सकते हैं। सो वी विल गो फॉर द अदर बुल। अदर बुल का प्रोजेनी नंबर 6 5वें महीने में है। 4 में हमने 2 पीछे और 2 आगे जोड़ दिया तो वो हमारा हो गया 2 से लेकर के 4 2 6, 2 से लेकर के 6 तक। So it gives you in 5th month it gives you 2300. ये 5वां महीने में it will be included. फिर
8वें महीने में है नॉट इंक्लूडेड, दूसरे महीने में इंक्लूडेड होगा क्योंकि 2 से लेकर के हम लोगों को कितने तक करना है, तो 6 तक। 2000 ये 9वां नॉट, 10वां नॉट, दो में है ये 2900 इंक्लूडेड होगा। 6 में 3000 इट विल बी इंक्लूडेड। 7 में 3100 इट विल नॉट बी इंक्लूडेड क्योंकि 6 तक हम लोगों को चाहिए, 2 से 6 तक। और 8 में इट विल नॉट बी एंड 3 में इट विल बी अगेन इंक्लूडेड। सो एवरेज हर्टमेट एवरेज क्या हो गया, 2300 प्लस 2000 प्लस 2900 प्लस 3000 प्लस 2800 का एवरेज। which will be equal to ये हमारा किसके लिए है, सायर ID1 के लिए, प्रोजेनी ID1, PROGENY प्रोजेनी ID1। इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं so that whenever you start to read it, even at the time of examinations and you look back into the copy, it is clear to you all. Hard mates are 6, 8, 11, 12 and 15. So calculating the average value, बताइए कितना हुआ एवरेज? by 5 होगा। 2600 by 5 होगा ना मैम, by 5 4 के लिए। ओह 5, वेरी गुड। एवरेज ही गलत, बोलिए, टेल मी। 2600 मैम। 2300 प्लस 2000 प्लस 2900 प्लस 3000 प्लस 2800, 13,000 डिवाइडेड बाय 5, 2600। आया आप लोगों का 2600 चिल्ड्रन? यस मैम। yes ma'am। ओके, देन प्रोजेनी ID2। अब हम लोग प्रोजेनी ID2 का हर्ड में ढूंढेंगे। 2 में क्या है, 7th मंथ में बर्थ है। अगर 7th मंथ में बर्थ है मतलब प्लस माइनस 2 कर देते हैं तो कितने मंथ्स में बॉर्न होना चाहिए, 5 से 9, 5वें महीने से 9वें महीने के बीच में जन्म होना चाहिए। दूसरे बुल्स में 5वां महीना 6, ID6, 7, 9, 12, 13, 14। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कहीं कुछ गलती लग रही हो तो बताइए। क्लियर है चिल्ड्रन? और कोई है क्या जो छूट रहा है? हर्ड मेट्स आर एवरेज क्या हो गया, हर्ड मेट एवरेज बराबर, ये भी तो हर्ड मेट एवरेज ही है, हर्ड मेट एवरेज बराबर, हर्ड मेट एवरेज बराबर 6, 7, 9, 12, 13, 14 का एवरेज। सो व्हाट इज इट इक्वल टू, 2300 प्लस 7, 2100 प्लस 9, 2200 प्लस 12, 3000 प्लस 13, 3100, 14 भी था ना शायद, प्लस 14, 2700। 2700
6, 7, 9, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calculate it, children. 2933.3 Upon 4. Should upon I 6 go with your calculation? upon 6 होगा. और कोई कैलकुलेट करेंगे? 2, 1, 0. मैम वो अपॉन 6 होगा. 2, 0, 0. हाँ वो 4 ही में मेरा दिमाग ना बेटा, अपना इंटेलिजेंस है ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या बोलिएगा आप. एक में जो अटकता है तो अटका ही रह जाता है, दिमाग कम. 2, 3, 0, 0 प्लस 2, 1, 0, 0 प्लस 2, 2, 0, 0 प्लस 3, 0, 0, 0 प्लस 3, 1, 0, 0 प्लस 2, 7, 0, 0. इट गिव्स यू 15,400. 15,400 भागा 6. 2566.7 माने रेकरिंग 6 है. 2566.7. 2566.7. Similarly, the values I am having, I am putting it here. Can you all just verify it? इसको बस कैलकुलेट करना, हर एक का एवरेज निकालना है. क्या करें, हर एक इसमें इन दोनों को दिखा करके फिर हर एक सब बुल का दो का दिखा देते हैं. नाउ कमिंग टू इसका वैल्यू 2600 2566.7. then the value for the third will be 2640. try by yourself. If you find any difficulty, just ask me. Method is the same. 2500 2566. Anyone in the class? Anshul, can I ask you, ये फिफ्थ बुल का हर्डमेट कौन कौन होगा? फिफ्थ बुल का, सॉरी फिफ्थ प्रोजेनी का, नॉट बुल, द फिफ्थ डॉटर प्रोजेनी ऑफ फर्स्ट बुल. यस सर, यस मैम. 6 से हो जाएगा 10 तक. 6 से 10 तो 7 नंबर मैम. 7, 9, 10. ठीक है. 7, 9, 10 एंड 12. ठीक है. 13, 14. ठीक है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. नाउ फोर्थ वाले का पुष्पा बेटा, टेल मी व्हाट आर द हर्डमेट्स. मैम फोर्थ वाले का 1 से 5 हो जाएगा. वेरी गुड. वेट नाउ. अर्चना, आर यू देयर इन द क्लास? शी इज नॉट देयर, राइट? ओके. अंजना, आर यू देयर इन द क्लास? She is also not there in the class. अंजना है ना शायद आपकी क्लास में बेटा? Okay, doesn't matter. Jay Govind, beta, what are the herdmates of third progeny? Are you there in the class? इस फोर्थ का बता सकते हैं? कौन बताएगा? बताइए, खुद से बताइए, फ्रॉम गर्ल्स साइड बोलिए. मैम 1 से लेकर के 5 तक होगा. वेरी गुड. हु इज दैट? सुप्रिया मैम. वेरी गुड सुप्रिया. सो बेटा, व्हाट विल बी इट आउट ऑफ द ऑल द प्रोजेनीज? मैम 1 से 5 में 6 नंबर आ जाएगा. 7 नहीं आएगा बेटा, 6 नंबर आएगा. वो 5 तो 8 के बाद, 8 तो बाद में है ना. 1 से 5 तक आएगा, मतलब 6 नंबर आएगा. 5 आ जाएगा. 2 आ जाएगा. और फिर कौन कौन बेटा, फिर से बोलिए. 6 नंबर आएगा, फिर? यस मैम. और 8 नंबर आएगा. ठीक है. फिर इधर में 11. ठीक है. और 15. ओके ओके ओके, डन. ओके, सो इट मीन्स वी कैन मूव फर्दर मर्जिंग दिस. अब हम लोग जो इसका एवरेज निकालेंगे वो हर्डमेट एवरेज ऑफ सायर आईडी 1 हो गया. वो कैसे निकलेगा? 2600 प्लस 2566.7 प्लस 2640 प्लस 2500 प्लस 2566 अपॉन 5. 2600 प्लस 2566.7 प्लस 2640 प्लस 2500 प्लस 2566. इट गिव्स यू 12,872.7. 12,872.7 भागा
1 2 3 4 5 5 which gives you 2574.54. Now similarly you calculate the herd mate of other sire as well. For sire number ID 2, इसी तरह हम लोगों को 3 कॉलम वाला एक टेबल लेना है विथ 5 प्रोजेनी, एक हेडिंग के लिए चाहिए, टोटल चाहिए 6 रो। उतने मेहनत करने के बजाय हम अब ऊपर जाएंगे और यहां से हम लोग इसको कॉपी करेंगे और हम लोग इस पे पेस्ट कर देंगे। एक और काम कर सकते थे, पूरा टेबल ही पेस्ट कर देते, बट डजंट मैटर, इन द थर्ड वन वी विल डू। अरे नहीं लिया, दिमाग नहीं लगाएंगे। डॉटर आईडी अपोस्ट्रॉफी एस, आई एम नॉट गोइंग टू पुट टू वेस्ट टाइम। 3 तो लगाना पड़ेगा टी, नहीं तो डॉहर आईडी हो जाएगा। हर्ड मेट ऑफ डॉटर, अंतिम कॉलम क्या होगा बताइए, अंतिम कॉलम क्या होगा बताइए। सुरभि, सुरभि, मैम हर्ड मेट एवरेज ऑफ सायर। वेरी गुड, हर्ड मेट एवरेज ऑफ सायर। सायर फॉर सेकंड आईडी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दिस इज 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। Moving above to the question. Now tell me, ये 6 का उपयोग कहाँ पे किया था? इसको डिलीट कर सकते हैं, जगह खाली बचाएंगे। Now tell me for second bull 6 from anyone from boys side except Anshul and Ronak who will tell me कि ये 6 वाले प्रोजेनी का जो है हर्ड मेट कैसे निकलेगा, बोलिए जल्दी से। एक्सेप्ट अंशुल एंड रौनक, कोई नहीं बताएंगे कि इसका हर्ड मेट कैसे निकलेगा 5th वाले प्रोजेनी का। एनीवन? I don't know names as well as of the students, although there are many good students. So if I ask that way, it shouldn't be. बताइए कोई from girls side, anyone? Ma'am, it will be from 3 to 7. Okay, very good. Who is that? Ma'am, Survi. Okay, Survi, very good. From 3 to 7. अब इस बुल को Yes, छोड़ ma'am. देंगे, इसका हर्ड मेट लेना है, सब लोग ध्यान से देखिए, इसको छोड़ देंगे, इस पे आएंगे। 3 to 7 मतलब कि 4। Means ma'am, daughter ID, ma'am, second one. Very good, excellent. Then Then? 3, then 4, then 5, हाँ, then 12, then 5 13. बेटा होगा, ये तो Then- 3 to 7 है, 5 to 8 हो जा रहा है। Sorry ma'am, not हाँ. 5. हाँ, Ma'am, 12, हाँ, 13, हाँ, and 15. वेरी गुड, वेरी गुड। 1 भी तो होगा ना मैम। Yes 3 to ma'am. 7 3 to, yes ma'am, 1 भी होगा. कहाँ पे बेटा है? 5 3 to 7, वेरी गुड, वेरी गुड। Who told 1? अंशुल मैम। अंशुल, गुड। 1 2 3 4 12, उसके बाद 15 मैम। 12 के बाद 15. 13, 15. 13, उसके बाद 15। 15 ठीक, 15। हाँ। वैल्यूज क्या क्या है वो लिख लेते हैं यहीं पे, फिर से वापस, नहीं तो हम लोगों को वापस इस टेबल पे आना पड़ेगा। 2501 की वैल्यू प्लस प्रोजेनी आईडी 2 की वैल्यू 2600 सामने दिया हुआ है कॉलम में, देखिए 2 से मैच करके। प्रोजेनी ऐड जो इतने देर नेटवर्क की वजह से या ब्रेन की नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क से आउट ऑफ द चैनल थे, वो वापस आ जाएं, प्लस प्रोजेनी आईडी 3 2500 प्लस प्रोजेनी आईडी 4 2700 प्लस
progeny ID 5 or 12 3000 plus progeny ID 13 3100 plus progeny ID 15 2800, and it gives you कैलकुलेटेड फास्ट। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। कैलकुलेट कीजिए 1 2 3, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2500 प्लस 2600 प्लस मैम 2742.8 है 2742 इतना जल्दी कैसे निकल गया? वेरी गुड। और कौन निकाला बताइए? मैम 2742.8 वेरी गुड। यस इट इज 2742.8। एक्सीलेंट। 2742.8। सो इट मीन्स दैट अब आप लोग बाकी का निकाल लीजिएगा। Verify what is the value. Ask me any doubt in the next class. उसी तरह से 7 का भी निकालना है। प्रोजेनी आईडी 7 का डेट ऑफ बर्थ देखेंगे हम लोग। जो लोग इतना देर तक अगर किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आउट ऑफ नेटवर्क एरिया थे, वो मेंटल भी हो सकता है, आदमी का इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी, मशीन का भी हो सकता है। तो देख लें 7th जो है वो बॉर्न है। 7th का डेट ऑफ मंथ ऑफ बर्थ देखिए 8 2013। 8 में से 2 प्लस माइनस 2 करें, मतलब -2 करेंगे तो 6 आएगा, +2 करेंगे तो 10 आएगा। तो छठे से लेकर के 10वें महीने के बीच में इस वाले बुल का नहीं, इसके अलावे जो बाकी 2 बुल हैं, मतलब जिसका ये प्रोजेनी है उसको छोड़ के जो बाकी जो 2 बुल के प्रोजेनी जो +-2 यानी छठे से 10वें महीने में जन्मे होंगे वो इसके हर्डमेट्स होंगे। यानी कि 7th वाले इसका हर्डमेट होगा प्रोजेनी आईडी 2, प्रोजेनी आईडी 3, प्रोजेनी आईडी 5, प्रोजेनी आईडी 12, प्रोजेनी आईडी 13 एंड प्रोजेनी आईडी 14। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी मिल्क यील्ड जो उसके सामने दी हुई है उसकी वैल्यू निकाल के उसकी एवरेज निकाल देंगे। दैट विल गिव यू हर्ड मेट एवरेज बिकॉज दे आर देयर हर्ड मेट्स एंड सो इट्स एवरेज विल गिव यू हर्ड मेट एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेनी। सो इट विल बी कैलकुलेटेड सिमिलरली फॉर calculated. Just ask me any doubt in the next class as well. Then although I don't think if you all were present in the class continuously there will be a problem. I have repeated it several times, but please don't be frightened to ask. It never means that if I said these things you all will be frightened to ask me. Still there can be doubt given the fact that this biological science deals with too much of mathematical things. So 2600.0 कैलकुलेटिंग इट्स एवरेज। अब जब हम लोग इन पांचों का एवरेज निकाल देंगे 2742.8 जोड़ 2733.3 जोड़ 2725 जोड़ 2725 जोड़ 2726 बटे 1 2 3 4 5, वो जो औसत एवरेज आप लोगों को मिलेगा वो हो जाएगा हर्ड मेट एवरेज। किसका? सायर का। किस सायर का? आईडी 2 का, क्योंकि ये प्रोजेनी किसके हैं? सायर आईडी 2 के हैं। और ये किसका एवरेज निकला हुआ है? तो हर्ड मेट ऑफ डॉटर का निकला हुआ है, जो कि सारे इसके प्रोजेनी थे, इसीलिए। एंड द वैल्यू इज 2705.2। वेरीफाई इट बाय कैलकुलेटिंग एंड इन्फॉर्म मी इफ यू फाइंड any doubt or mistake. Similarly, I take the next table. This time I am going to copy the table only. Paste.
सायर ID3, ठीक है, 11, 12, 13, 14 and 15. And what were the values, herd mates? As the value with me, I am putting it over here, 2400.0, 2416, 2366, 2366 and 2375. And this is 2385. Suppose I add an additional question over here, क्योंकि इसी से related आगे ये question होगा. Find the sire indices using herd mate average and rank the 3 sires. Then what you will do? Answer. What is the formula? We know that sire index by herd mate average is equal to herd average plus B into daughter's average minus herd mate average. ये herd mate average मतलब herd mate average of sire. अब जो ये प्रोजेनी के herd mates है उसका कोई काम नहीं होगा. Please don't get confused from the formula. Now we just need these 3 herd mate of the sire because we have to compare the sires. That's why we have calculated this herd mate average based on the average of its daughters. Where B is equal to 0.5 NH square upon 1 plus N minus 1 into 0.25 H square. कहाँ से उठाएंगे अब इसको? थोड़ा सा इतना टाइप करने से अच्छा है. I have already taught to you all in this slides herd average formula. So this is the herd average method which we are going to use now. So for sire 1 हेरिटेबिलिटी 0.25 मान लीजिए, ठीक है. हर्ड एवरेज 2200 मान लीजिए. इफ 2500 कर लीजिए. यस, कहां पे लिखे? So for sire 1 I बराबर क्या हो जाएगा? Am I audible to you all children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So herd average 2500, कैलकुलेटर रेडी रखिए, प्लस 0.5 into 0.25 upon, I am calculating this term B. Why not if you calculate this term B first?
ये तो सबके लिए सेम रहेगा 0.5 इंटू वेयर n इज व्हाट, टेल मी n क्या है बताइए चिल्ड्रेन। n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, हाँ बोलिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। So we are first calculating this. B is equal to 0.5 into 5, n की वैल्यू पुट की, प्रोजेनी की, हेरिटेबिलिटी 0.25 हमने बोला है, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में, ये न्यूमरेटर है, बट्टा डालते हैं। नाउ द डिनोमिनेटर स्टार्ट्स विद दिस मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस n माइनस 1 यानी 4, n है 5 इंटू 0.25 इंटू हेरिटेबिलिटी 0.25. This is the denominator, thus closed. ठीक है, which will give you the value equal to, calculate children and tell me. मैम h स्क्वायर इक्वल टू 0.5 है ना? हेरिटेबिलिटी 0.2 मैंने 0.5 बताइए, 25 कर दो, है ना? ठीक है, यस चलो ओके मैम ओके कैलकुलेट कर लिया। 0.5 into 5 into, रुक जा बेटा, you all are gen next, so definitely given non-additive gene action for few traits, heterosis and hybrid vigor will lead to increased IQ and all the good traits. Touch wood, fingers crossed, it should be there na in children. Is equal to 0.625. ये न्यूमरेटर आया हमारा, और डिनोमिनेटर क्या आएगा? 25 चौका 100, 1, 0.25, 1.25। ऊपर में कितना आया था भूल गए अब हम। 0.5 इंटू 5 इंटू 0.25, 625 करके कुछ था, हाँ, 0.625 अपॉन, हम 0.5 होगा सर, 0.625 डिवाइड बाय 1.25 एग्जैक्टली 1.25, वेरी गुड। इक्वल टू 0.625 divided by 1.25, it is 0.5, right? यस मैम Okay, so for psi 1 it will be equal to, we put the value of b, (0.5). Bracket starts, daughter's average, we go to find the average of all the daughters, we have not yet calculated. फर्स्ट वाले का डॉटर्स एवरेज क्या आएगा? डॉटर एवरेज मतलब फर्स्ट वाले का 2500 प्लस 2600 प्लस 2500 प्लस 2700 प्लस 2500 divided by 5, it is 10,800 बटा 5, 2000 2360 करके 10,800 डिवाइडेड बाय 5, 2160। तो एक कॉलम और इसमें इंक्लूड कर दें, वो यहाँ इंक्लूड करने का मतलब नहीं बनता है, कंफ्यूजन होगा। डॉटर्स एवरेज क्या हो गया? 2160 माइनस हर्ड मेट एवरेज 2574.54,
कैलकुलेट इट फास्ट एंड टेल मी ऑल ऑफ यू, बताइए। देखते हैं 12.75 गर्ल साइड प्लीज क्रॉस चेक इट और बताइए कोई कितना बोला बेटा। हम टोटल हो जाएगा 25 12.75। क्या फाइनल आंसर बताइए बेटा। यस मैम, फाइनल 100 ये 2500 12.75। 2500 प्लस 2160 2160 आ रहा है 2292 आ रहा है मैम मेरा तो। 2292.8 2160 minus 2574.54 gives you minus 414.54. इसको 400 minus 414.54 0.5 into minus 414.54 इक्वल मिस्टेक था कोई बात नहीं बेटा। मैम 200 25 207. प्लस माइनस 2 दूना 4 2 दूना 4 टोटल 14 2 दूना 4 2 7 14 7. मैम को 2160 कैसे आ रहा है मैम? 2560 होगा ना? कहाँ पे 2160 है? 2 मिनट रुक जाइए बेटा। यहाँ पे 2560 आया है एवरेज कैलकुलेट किया। एवरेज 2560 सही बात है, कोई वैल्यू 21 में है ही नहीं तो 21 आ कैसे सकता है। एवरेज हैज आल्सो ऑलवेज टू बी इन बिटवीन ही रहेगा, एक्सट्रीम कैसे ले लेगा। बताइए कितना हुआ आंसर, बोलिए। अब चेंज हो गया आंसर इतने। 2 1 और 5 में 4 चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हटके हो गया यहाँ, ठीक है। यानी ये हमारा हो गया 2 7 14 2 दूना 4 7.27. विच विल गिव यू, बताइए आंसर कितना है। 2492.73 7. ठीक है। यस मैम। अब यहाँ एक मेंशन कर देते हैं सो दैट व्हेन यू स्टडी इट आफ्टर मंथ्स यू ऑल शुड नॉट फॉरगेट कि कैसे आया। डॉटर्स एवरेज इज इक्वल टू 2500 2600 2500 2700 2500 2500 प्लस 2600 प्लस 2500 प्लस 2700 प्लस 2500, यही है वैल्यू। यस मैम। अपॉन 5 which is perhaps equal to 2560, ठीक है। now for sire 2 daughters average is equal to 2300 2100 2000 2200 2300। Is it clear to all of you? यही है ना वैल्यू शायद। ठीक है, अपॉन 5 so it gives you the value
2300 प्लस 21 220 प्लस 2000 प्लस 2200 प्लस 2300 10,900 डिवाइडेड बाय 5 2180 2180. ठीक है. So I in this case will be equal to हर्ड एवरेज सबके लिए सेम ही रहेगा. B की वैल्यू विल बी सेम फॉर ऑल. Daughter's average will of course vary, and then the herd mate will be varied as we have calculated it 2705.2, which will be equal to 2705.2 minus 2180 525.2 equal to 2237.4. For sire 3, daughter's average is equal to 2900 प्लस 3000 प्लस 2900 30,000 3100 2700 2800. Calculated children. उनतीस सौ प्लस 3000. हाँ बोलिए बेटा. 3100 प्लस 2700 प्लस 2800 14,500 14500 divided by 5. Very good, all of you. 2900. So I will be equal to herd average will remain the same plus 0.5 will remain the same value of B because it's been calculated from H square, and H square will vary according to the trait, according to the population. ये same population same herd में हेरिटेबिलिटी की बात हो रही है एक ही ट्रेट के लिए, इसीलिए B हेरिटेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, प्रोजेनी पे डिपेंड कर रहा है. सो इट इज सेम फॉर ऑल. अगर N अलग होता हर सायर के केस में तो B की वैल्यू हर सायर के लिए अलग होती. नाउ is it, did you hear what I said in the last sentence? I said that this B has been calculated from N and H square. H square will remain the same for all the three sires. एक ही जगह पे एक ही सायर एक ही environmental condition में for a trait same है. N, ये N तीनों में 5 है. अगर ये N अलग होता तो हम लोगों को तीनों सायर के लिए अलग अलग B की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती. Because here N is also same, तो दो ही तो चीज है N और H, तीनों में सेम है, इसीलिए हम लोगों ने 20 तीनों के लिए 0.5 रखा. And now coming to here we have the daughter's average which is equal to 2900. coming back here 2900 minus last one herd mate average. Can you tell me what will be the herd mate average over here? 2385. Excellent, very good. 2385. Excellent, because it shows how you all are promptly looking at what I am teaching, that's why. So it will be equal to, calculate कीजिए. 2757.5.
So sire indexing of these three sires based on this method of herd mate average shows that the third sire was best, followed by the first one. So if you have to select one sire, it will be sire number. How much? Which one? 3. Very good. Very good. So this is the gist of today's class on the numericals based on sire indexing. If you all, I request you all to make a practical copy about which I'll be giving the detail in the next class. Other than that, you all can try the same this question also, which is based on it only, herd make comparison, जिसमें इसमें निकालना है. All the lessons have been taken from Animal Breeding Principles and Applications by Gurvinder Singh Bra. And so this is the book we have dealt with. Now this was the lesson. So was the class clear to you all up till here? Yes, ma'am.